Hello student, welcome to our today's class. Today we are going to see the very basic part of our grammar, that is what the part of speech. Now it is very important to understand that what is the part of speech. Part of speech is one of the 9 type of English words. Okay, so now as we know that in a language we speak a sentence, and sentence is nothing but the group of words. Here is sentence. Now what is sentence? Sentence is a group of words that tell us the complete thought. It always tell us who or what happened where. Okay, so such kind of information is given by the sentence. Now here the sentence is what? Sentence is a group of words. Now what is that words? That words are nothing but the 9 words that are the part of speech. Okay. Here what we talk about the words in the sentence, that words are nothing but these 9 words. Our sentence is made up of these 9 words. Now what are that words? These words are verb, noun, adjective, adverb, pronoun, preposition, determiners, conjunction and interjection. These are the words. By the bonding of these words, our sentence is created. Okay, so now each word, these words are having the different meaning. Okay, there are thousands of words and every word are having their different meaning. For example, some word express the action, some word express the things, some words used to join the another word. Okay, so here we are going to see all of this. These words are nothing but the building blocks. Okay, if you ask me, then what is the importance of these words? These words are the building blocks. It means when we make a building, we need of bricks. With the help of these bricks only our whole building is created. Like this, with the help of these words, with the help of these words only our whole sentence is built up. So it is very necessary to understand what are these words are. Here we have one table. In this table we are going to see what is these 9 words. See, first is noun. Noun is nothing but the thing or a person. Okay, it is means थिंग और अ पर्सन मीन्स नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को जब इंडिकेट हम करते हैं उसे कहते हैं नाउन. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, कैट, वर्कबुक, नोट, दिस आर द नाउन्स. Verb is a action or a state. It means if I am doing something and that is shown by some word, it means that is a verb. For example, come, out, cut. It is showing some action. So such words are known as the verb. Okay, now adverb means it describes the action. It means write slowly, walk fastly. Here fastly is explaining the verb. Fastly is explaining your action, that is writing action, your walking action. It is explaining by one word, that is what the adverb. Similarly, there are noun also. If some word explaining the noun, then it is called as a adjective. For example, you are very beautiful. So beautiful, it is for you. You is a you कौन है? You is a noun. So noun को describe कर रहा है. So that's why beautiful will be the adjective. Similarly, your writing is very good. Your writing is so neat. So यहाँ पे जो neat हमने बोला है, किसके लिए बोला है? Writing के लिए बोला. Writing is a action. So it will be the adverb. Similarly, pronoun. Pronoun is the word which we use in place of the noun. नाउन की जगह पे, जैसे कि यहाँ पे ही इज़ वेरी क्लेवर. ही मीन्स कौन? ही मीन्स मीना ही मीन्स मोहन हो सकता है, ही मीन्स गणेश हो सकता है, लेकिन हमने गणेश और मोहन बोलने के अलावा उसको ही बोला है. सो इट रिप्लेस द नाउन. सो जो वर्ड आपके नाउन को रिप्लेस करता है उसको कहते हैं प्रोनाउन. उसके बाद प्रीपोजिशन. What is mean by the preposition? Preposition
इट शोज द लिंक। ओके, ये आपके नाउन का लिंक बताता है किसी और चीज़ के साथ, किसी और वर्ड के साथ। जैसे कि शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। ओके, यहाँ पे क्या है, जो लड़की है वो टेबल के अंदर क्या हुई है, छुपी हुई है। तो इट इज शोइंग दैट अंडर वर्ड इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन द शी एंड द टेबल, so that under word will be the preposition. Conjunction means if we are joining two words or two sentence. For example, but, while, when, and. These are some words which we use for the joining purpose. Interjection means it's showing your expression. Exclaim जब हम होते हैं, oh my god, यहाँ पे मैंने जो ओ बोला है, या फिर alas it's very sad, या फिर wow what a beauty, इस तरीके से जो मैंने बोला है wow या फिर alas या फिर ओ, इट्स शोइंग माई सडन एक्सप्रेशन। सो ये जो सडन एक्सप्रेशन जो होते हैं इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। So I hope you understand shortly what are the part of speech. Now here we are going to explain these things deeply. So our first is noun. Let's start with the first section, that is the noun. What is the noun then? Noun is the word which denote person and a living being, place, thing एंड आइडिया। ओके, सो नाउन क्या है? नाउन ये ऐसे वर्ड्स है जो क्या डिनोट करते हैं, पर्सन को डिनोट करते हैं, किसी भी लिविंग चीज़ को, प्लेस को या थिंग को डिनोट करते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इट इज़ शोइंग द प्लेस, मीना इट इज़ शोइंग द नेम, ओके, टेबल क्लॉथ इट इज़ शोइंग द थिंग। इस तरीके से किसी भी चीज़ को हम जब किसी नाम से इंडिकेट करते हैं तब उसे कहते हैं नाउन। ओके, अब नाउन क्या होते हैं? नाउन एक तो सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि यू कैन सी हियर मदर, ये भी क्या है? नाउन है। और मदर्स क्या है? दिस इज़ ऑल्सो नाउन। मदर ये एक सिंगल मदर है और मदर्स बोले तो बहुत सारे। गर्ल एक सिंगल लड़की है, गर्ल्स दिस आर द मेनी। सो जो हमारे नाउन्स होते हैं इसको हम सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपको आइडिया क्लियर हो गया व्हाट इज द नाउन। नाउन इज द वर्ड विच इंडिकेट और विच डिनोट द पर्सन, थिंग्स, प्लेसेस, आइडियाज़, इटीसी। मतलब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ नाम देते हैं। जैसे कि चेयर, बैठने की जो एक चीज़ है उसको हमने एक नाम दे दिया है चेयर। अब उस चेयर को बताने के लिए मैंने बोला चेयर, तो ये चेयर क्या हो गया? उसका नाम हो गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर जो ओढ़ने की कुछ कपड़ा है उसको हम बोलते हैं बेडशीट या चादर, तो उसको मैंने क्या दिया? वो ओढ़ने के कपड़े को मैंने चादर बोला है या बेडशीट बोला है। सो दैट इज़ व्हाट द नाउन। ओके, अब ये जो नाउन होता है सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अगेन देयर आर सम अदर टाइप ऑफ नाउन। सो व्हाट आर दैट? देखिए, अभी हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है इट इज़ डिनोट द कॉमन टू एवरी पर्सन और एवरीथिंग ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम क्लास। इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट इज़ अ कॉमन नाउन है। एशिया क्या हो गया? हमने स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को नाम दिया है एशिया, बट कॉन्टिनेंट क्या? कॉन्टिनेंट माइट बी एनी, एशिया भी हो सकता है, रशिया, एशिया भी हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, साउथ अमेरिका हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, कोई भी कॉन्टिनेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ड हम यूज़ करते हैं, ऐसा नाम यूज़ करते हैं जो कॉमनली सबको लागू होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया गर्ल्स, या जैसे कि मैंने बोला बॉयज़। अब गर्ल्स बोले तो क्या सारी गर्ल्स आ जाएंगी, बॉयज़ बोले तो सारे बॉयज़ आ जाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैंने बोला कि सुरेश, सो सुरेश क्या हो गया? ये स्पेसिफिक बॉय हो गया। लेकिन बॉयज़ बोले तो उसमें सारे। तो ऐसे जो हम एक कॉमनली हम रिप्रेजेंट, एक कॉमन क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर एक सेम काइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक कॉमन नाम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। इतना समझ में आ गया है?
ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गर्ल्स क्या है, सारी गर्ल्स है, एक ही काइंड के है, एक ही क्लास के है। क्लास बोले तो एक ही ग्रुप में आ जाती है, सारी गर्ल्स गर्ल्स के ग्रुप में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैंने प्लांट्स बोला तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक ही। प्लांट्स तो कितने सारे हैं, लेकिन सारे प्लांट्स को मैं एक ही कैटेगरी में लेके आऊँगी, तो उन सभी को मैंने कॉमन नाम दे दिया है प्लांट। लेकिन अब मैंने मैंगो का प्लांट, ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। तो ये जो मैं स्पेसिफिक नाम दे रही हूँ, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए मैं अगर कोई स्पेसिफिक नाम देती हूँ, जैसे कि मैं कौन हूँ, आई एम अ गर्ल, ओके। लेकिन अब गर्ल क्या हो गया, गर्ल में तो सारे गर्ल्स एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, गर्ल्स के ग्रुप में आ जाएंगे। लेकिन मीना ये डिफरेंट गर्ल है, सुमीना ये डिफरेंट गर्ल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुमीना एक नाम हो गया और मीना एक पर्टिकुलर नाम हो गया। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर नाम हम किसी चीज़ को दे रहे हैं उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल्स, बैठने की जो भी चीज़ें हैं उसको हमने चेयर्स बोल दिया, लेकिन रेड चेयर ये क्या हो गई, उसमें से पर्टिकुलर, सो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट इज अ कॉमन नाउन एंड एशिया इज अ प्रॉपर नाउन। लंदन इज अ कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, कैपिटल कुछ भी हो सकता है, कैपिटल इंडिया का मुंबई भी कैपिटल है, उसके बाद दिल्ली भी कैपिटल है। लेकिन मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल है और दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। उसी तरीके से लंदन क्या है, इंग्लैंड की कैपिटल। लेकिन कैपिटल तो कोई भी हो सकता है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल इज अ कॉमन नाउन, बट लंदन एंड इंग्लैंड दीज आर द प्रॉपर। ओके, सो नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है इट डिनोट्स योर क्वालिटीज, एक्शन और स्टेट्स। सी हियर, काइंडनेस, hatred, honesty, bravery, these are some words which is explaining your qualities। हमारी जो क्वालिटीज़ के लिए, अब देखो काइंडनेस ये एक क्वालिटी है, लेकिन उसको शो करने के लिए मैंने उसको एक नाम दे दिया ना काइंडनेस का। अब हेटनेस ये क्या है, मेरी एक भावना है, लेकिन उसको मैंने शो करने के लिए कुछ नाम दे दिया है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन ये नाउन कौन सा है, जो हमारी भावनाओं को, हमारी क्वालिटीज़ को, हमारी एक्शन को, हमारे स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, so what is the next is the collective noun. Collective noun is nothing but the word that denote the number of person or things taken together but spoken of as a one is collective noun। इसका मतलब यहाँ पे हम एक ऐसे वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें तो नंबर ऑफ पर्सन है या नंबर ऑफ थिंग्स है, लेकिन उसको जब हम बात करते हैं तो ऐसा जताते हैं कि वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अवर नेशन मेंटेन इट्स ओन आर्मी। यहाँ पे देखिए आर्मी जो है, यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स को हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन हम इसको शो कैसे कर रहे हैं कि ये भाई एक ही है। जैसे कि माई अंकल इज द विलेज, माई अंकल्स इन द विलेज ओन अ हर्ड ऑफ शिप्स। यहाँ पे देखो हर्ड जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शिप्स, लेकिन इसको हमने कैसे शो किया है, जैसे कि ये एक ही है, इजंट इट। सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउ नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन। जब when two or more nouns combine to form a one noun is called as a compound noun। for example, blackboard। ओके, यहाँ पे ब्लैक और बोर्ड ये दोनों अलग अलग नाउन है, इनको हमने एक करके क्या किया है, उसका एक नाउन बनाया है। तो ऐसे जो एक से ज़्यादा नाउन्स को इकट्ठा करके जो एक नया नाउन बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। द बस ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली। यहाँ पे क्या है, बस और ड्राइवर मिला के एक नया नाउन बना है, दैट इज़ अ बस ड्राइवर। हियर इज़ अ स्कूल एंड टीचर, मिला के एक नया नाउन बना, दैट इज़ अ स्कूल टीचर। सो इट विल बी द कंपाउंड नाउन। द नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। ओके, नाउ सी दैट बुक्स, फ्रेंड, ब्रदर, teacher, chair, these are the countable noun। okay, countable noun are the noun of a people or object that we can count। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे countable noun।
So student, I hope you understand what is the noun and what are the different types of noun. Okay, so in next session we are going to discuss on the another part of speech, another word of the part of speech, that is the pronoun. Till then, bye bye.